महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध ने समूचे संसार को मैत्री, करुणा, प्रेम, सद्भावना एवं समानता का संदेश दिया। भारत का हिम शिखर कहे जाने वाले लेह लद्दाख की भूमि से भगवान बुद्ध के इन्हीं संदेशों को भंते संघ सेना जी संसार के जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इसी के तहत विदेश एवं दुनिया में विभिन्न जगह बुद्ध का संदेश प्रचारित करते हैं। उनकी कोमल वाणी, सहृदयता, मैत्री एवं करुणा से समर्पित उनके व्यक्तिमत्व से हर मनुष्य मात्र का कल्याण होता है। महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर के तत्वावधान में भंते संघ सेना जी के मार्गदर्शन में गुजरात के अहमदाबाद स्थित इंडस यूनिवर्सिटी में महाकरुणा दिन का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु एवं मान्यवरों ने शिरकत की। इस अवसर पर पूज्य भदंत संघ सेना जी ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। भंते संघ सेना जी शिक्षा को सर्वाधिक महत्व देते हैं। लेह लद्दाख में उन्होंने 1986 से महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर के द्वारा गरीब बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की। आज उनके इस कार्य के कारण कई जिंदगियां सफलतापूर्वक जीवन यापन कर रही है। भंते जी की इस महानता एवं गौरवपूर्ण कार्यों पर टाइम्स नाउ इस चैनल ने विशेष डॉक्यूमेंट्री प्रसारित की थी, जिसे इस समारोह में दिखाया गया। I was born and brought up in a very pious traditional Buddhist family in my village called Timisgam. Then at the age of 21, when I was serving in the Indian Army, I realized that the life of a soldier is no longer for me and the life of a monk is for me. I always had a strong question about life. I was always looking for something, not knowing very clearly what I am searching, what for I am looking. What is the best art of living in this world? When I began to study the teachings of Buddha, I realized that I owe something to my people. I need to do something. मीलों का लंबा सफर तय करके महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर के बच्चे अहमदाबाद पहुंचे। इन बच्चों ने लेह लद्दाख की संस्कृति को अनुरूप संगीतमय प्रस्तुति दी। And I, Kelsangamu, feel immense pleasure to read out the prayer of compassion, which is composed by our most ever teacher, Venerable Sanghasena. Kindly bestow your blessing on us to remain always a source of water for the thirsty, a source of food for the hungry, a source of healing for those who are ill, a source of light for those who are in darkness, a source of companionship for those who are lonely, a source of protection for those without protection, a source of health and friendship
for all in need, a source of crutches to the broken limbs, a source of parental love and care for the orphan, a source of home to the homeless, a source of asylum for those who have no safe place, a source of warmth of real love and compassion for those abandoned in coldness of war and hatred. May the Buddha be at our head, may the Dhamma in our heart, and may the Sangha be at our side to protect and guide us always. May all enjoy real peace, real happiness, and Dear guests, on the same time, we are here to celebrate Mahakaruna Day to spread Karuna or compassion in the whole world. Compassion, the universal language which knows no boundaries, no color, no caste, no religion, no nationality. Compassion, the universal essence for humans to understand humans. Through this program, we are trying to remind one and all to live with peace, loving each other, helping each other, cooperating with each other, and most importantly, understanding each other. We breathe the same air, we drink the same water, we live on the same land, and then why hate each other? Why fight with each other? Let's spread compassion. Let's live with compassion. Let us live happily and peacefully. Let us live with compassion. Happy living, happy Mahakaruna Day. We practice the Buddha's teachings in our everyday life and share the merits of this practice with all beings. We welcome all people, irrespective of caste, creed, religion, or nationality, to join us as honorable members of our organization. We practice the 5 Buddhist moral precepts and samatha and vipassana meditation in our daily life for the eradication of ignorance and all defilements. We seize every opportunity to work for the welfare and happiness of all beings through spiritual and humanitarian services and activities. We respect all Buddhist traditions and pledge to live and walk in unity for the peace and happiness of all. We respect all religions and the culture of all nations and actively promote interreligious and intercultural harmony and peaceful coexistence. We strive to eradicate poverty and illiteracy wherever it exists, particularly by providing holistic education to the children. We promote equality, fraternity, liberty, spirituality, and amity and unity in the society. We always remain grateful to the Mother Earth, the water, trees, and animals, and undertake not to consume more than our actual needs. We pledge to protect and preserve the natural environment for the benefits of all living beings. We fully endorse the United Nations Millennium Development Goal. Thank you. Ladies and gentlemen, in this world of stress and storm, hatred and violence, strife and wars, ego and greed, our sorrows and wounds can be healed only when we cure them with love and compassion. Perhaps at no time was this more essential than today, when the world has become so much egocentric, economy-driven, and too much materialistic. Compassion, the dearest quality that breathes in every little thing we do, the ultimate expression of human's highest self, and the keen awareness of the interdependence of all beings that can reconcile everyone and everything in this whole world. In the light of the tragedies that have been unfortunately occurring across the world over the past many years, since 2012, we have been observing the Mahakaruna Day, or the Day of Great Compassion, as taught by the Lord Buddha and many enlightened masters, saints and sages who ever lived in this world, to commemorate and celebrate the hope and determination to rebuild a peaceful world
that we all are worthy to realize and enjoy in ourselves. इसके बाद भंते संगसेना जी ने अपने विचार व्यक्त किए। गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। I have no words. Thank you so much for allowing us to travel from the high Himalaya to this beautiful part of our country, Gujarat, and to remind the people of the great Buddha and his teachings. You know, India is the birthplace of this great religion, Buddhism, Buddha's teachings. And from this India, these great compassionate teachings of Buddha spreaded in all the directions of the world and reach in every corner of the world and touch the hearts of millions and billions of people. And today, you know, Buddhism is fast growing religion in America, Australia, Europe, and many countries such as Austria and Europe. Prior to that, many neighboring countries such as Sri Lanka, Burma, Thailand, Laos, Cambodia, China, Tibet, Korea and Japan have accepted Buddhism as their official national religion. Thailand is almost the 100% Buddhist population. So also Burma, Sri Lanka. But in our own country, in the birthplace of this great religion, Buddhism, the religion of compassion and love and wisdom slowly decline and disappear from major parts of this great country, except few places like Ladakh, where we have preserved in the deep Himalaya with all our devotion. As Dalai Lama always say, India is our guru. I want to repeat this. No doubt, India has been the motherland of the great spirituality, great religion. And we have managed to preserve these teachings in the Himalaya. Today we are bringing out from the deep hidden Himalaya to our people in big cities to share with you. This is time to welcome back Buddha to his motherland. I believe the greatest contributions India has ever given to the world is this timeless, precious, message of love, compassion, and wisdom to the world. And for this, even today, millions of people from all parts of the world come to this country to pay their gratitude and respect. So it is our sincere wish to have a small Buddhist meditation center in Gujarat with the help and support of all of you. महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर के बच्चों ने तथा गायक अनिरुद्ध बौद्ध ने सभी सम्मिलित लोगों के लिए मैत्री एवं करुणा के गीत संगीत की अनुभूति प्रदान की। वो क्या जाने जीना जोना जग ना जाने, वो क्या जाने जीना जोना जग ना जाने, स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिठिको अकालिको एहि पस्सिको स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिठिको अकालिको एहि पस्सिको Light in the lamp within, delighting. 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 मंगल कर्मों से ही बनती है कोई जगह पावन, पावन रहते मंदिर मस्जिद गिरजाघर,
जब तक रखो पावन। मंगल कर्मों से ही बनती है कोई जगह पावन। पावन रहते मंदिर मस्जिद गिरजा घर, जब तक रखो पावन। सौदा न कोई हो जब जागा हो मन तेरा। सौदा न कोई जब जागा हो मन तेरा, छल ना सकेगा अंधेरा। सौदा न कोई जब जागा हो मन तेरा, छल ना सकेगा अंधेरा। हर पल जो जी जाए अनुभव वो कर पाए, सृष्टि का अद्भुत नजारा। आने वाली रातों को बीती उन बातों को हट कर करूं शुद्ध जीवन, ये जीवन, ये जीवन। आओ देखो ना, आओ देखो ना। थैंक यू। सुनो रे हाथ जोड़ो मिलके करो वंदन, आते हैं बुद्ध भगवन। इस महाकरुणा दिन का महत्व सभी ने अपने विचारों में व्यक्त किया। विचार एवं संस्कृति दोनों का सुंदर मिलाप इस समारोह में दिखा। करुणा डे, करुणा यानी दया। भगवान बुद्ध ने हमें करुणा, समता, मैत्री, शांति का संदेश दिया है। लेकिन अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो हर जगह पे अशांति फैली हुई है, और ऐसे लगता है कि ये अशांति के लिए सिर्फ शांति का संदेश भगवान बुद्ध उन्हीं का संदेश है जो इस दुनिया के लिए ज़रूरी है। एक्चुअली यहाँ मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने यहाँ देखा कि यहाँ हर जाति और धर्म के धर्मगुरु आए हुए हैं। इनको सबको देख के ऐसे लगता है जैसे अखंड भारत का सपना जो है वो पूरा हो रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरा भारत बुद्धमय हो इस तरह का सपना देखा हुआ था कि करुणा इज नॉट ए कंपैशन। मैंने ट्रांसलेशन दिया हुआ है। कंपैशन एक बड़ा छोटा वर्ड, जैसे रिलीजन इज नॉट ए धर्म या धर्म, एक संप्रदाय को संबोधित करता है रिलीजन, धर्म उससे बहुत ऊपर है। वैसे ही जो करुणा में 4 तत्व जब मिलता है तो करुणा बनता है। पहला तत्व मिलता है कि मैत्री भाव, दया भाव, स्नेहिलता, सात्विकता, उसके बाद आचरण की सभ्यता से निश्रित चेतना का ऊर्ध्वांगी विकास। जब आपके मनस्तिष्क का ऊर्ध्वांगी विकास होगा, अधोगामी नहीं, तब आप में करुणा उपजित। जब करुणा उपजित होगी, करुणा का उपज होगा, तब हम जो है पूरे मानव जाति को नहीं, पूरे सृष्टि को, पूरे प्राणी मात्र को अपना समझने लगेंगे, उसके प्रति समादरित हो जाएंगे, आदर का भाव रखने लगेंगे। और जब पूरे प्राणी जात के प्रति समादरित होने लगेंगे तो न वहाँ कोई धर्म, न कोई संप्रदाय, न कोई जाति, न कोई वर्ग, न कोई एरिया, न कोई समुदाय, न कोई इथनिक ग्रुप। पूरा विश्व जो है इथनिक सेंट्रिसिज्म का शिकार हो रहा है, जिसकी वजह से इथनिक सेंट्रिसिज्म कहते हैं, एक सामुदायिकता तक केंद्रित हुए हैं। भगवान बुद्ध का धर्म इन सबसे ऊपर है। विश्व को भगवान बुद्ध का धर्म कहते हैं कि विज्ञान का धर्म है, विज्ञान दिया था। उस कॉन्सेप्ट का नाम है प्रतीत समुत्पाद। प्रतीत समुत्पाद कार्य कारण सिद्धांत, पूरे विश्व के विज्ञान का जन्म ही जो है भगवान बुद्ध के फिलॉसफी से हुआ है। दूसरी बड़ी बात रोनाल्डो बर्न की किताब है द सीक्रेट। दुनिया के कम से कम जो है 150 बड़े बड़े अथॉरिटी से मिलने के बाद उसने स्टडीज़ किया और ये देखा था कि पूरे विश्व को समझने के लिए क्या है विश्व में, तो उसने सिद्धांत ढूंढा था लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत। उसका बेसिक एलिमेंट जो है, बेसिक ट्रेट्स जो है, उसने बुद्ध धर्म से लिया था। इसलिए बुद्ध धर्म जो है सभी धर्मों के बीच में महान होते हुए एक खुशबू की तरह है, इस फूलों के गुलदस्ता के धर्म के बीच में। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, ओहो ओहो।
सुनो रे हाथ जोड़ो मिलके करो वंदन, आते हैं बुद्ध भगवन, ओ आते हैं बुद्ध भगवन। All the good wishes for you for organizing such a beautiful day, which is the need of the hour. And we all know that what has recently happened in India at Pathankot, the air base. And if you see what happened in the Paris, and today is the day actually, we all are here together to give the message of love, peace, harmony, compassion, generosity to the world. So I really feel that all of you are here are very, very special, very honorable guests. एक कहानी सुनाना चाहूँगी महात्मा बुद्ध की। मुझे PhD करते समय बहुत सारी बातें अध्ययन में मिली, और एक उनकी कहानी है कि एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक बहुत ही गरीब व्यक्ति आया, और उस गरीब व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, इसका मुझे दुख है। तो महात्मा बुद्ध ने उनको बहुत सुंदर जवाब दिया कि तुम गरीब इसीलिए हो कि तुम जीवन में किसी को कुछ देना नहीं चाहते हो। तो उस गरीब व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, मैं क्या दूं? तो महात्मा बुद्ध ने उसे कहा कि देख, तेरे पास इतना चेहरा सुंदर है, तो देना हो तो मुस्कुराहट दे देना, और तेरे पास जो ये मुंह है, ये जो जबान तुझे दी है, इससे तुम ऐसे मीठे बोल बोल देना, ऐसे कंपैशन के शब्द बोल देना जो दूसरों के दिलों तक राहत और सुकून पहुंचा दे। तेरे पास ये दो हाथ हैं, ये ऐसे दो हाथ, तू जब चाहे किसी की भी मदद कर सकता है, उसे हेल्प कर सकता है। किसने कहा कि तू गरीब है? महापुरुष बुद्ध जी ने जो पैगाम दिया है इंसानियत का, भाईचारगी का, उखुवत का, एक दूसरे से मोहब्बत का, ये लाजवाब है। इस्लाम में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिनको प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जिन लोगों ने उनके जीवन चरित्र को, उनकी लाइफ को पढ़ा है कि इन्होंने सदा हमेशा भाईचारगी और शांति और अमन का जो पैगाम दिया है, 1400 साल से कुरान के सफ़हात के ऊपर और कुरान की लकीरों पर वो चीज़ें अभी तक लिखी हुई और पढ़ी जा रही है और सुनी जा रही है और समझी जा रही है। बहुत ज़्यादा वक्त कम है, मैं ज़्यादा तफसील में, डिटेल में जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये दुनिया में जितने भी महापुरुष और बड़े इंसान गुजरे हैं, उन्होंने जब तक दुनिया ख़त्म नहीं होगी वहाँ तक के इंसानों के लिए एक सबक और एक बहुत बड़ा सबक देकर के गए कि आने वाले इंसान, क़यामत तक के इंसान अपने दिल की शुद्धि, मोहब्बत, भाईचारगी और उखुवत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारे।
बहुत ही ज़्यादा खुशी और मैं आज अपने ऊपर गर्व महसूस कर रहा हूँ कि आप सभी हजरात आए और आकर के इस महान पुरुष ने जिनके बारे में और जिनको मानने के और इनका संदेश पूरी दुनिया में लोग पहुंचा रहे हैं और पहुंच रहा है, तो इनका जो दया और भाव का जो संदेश है और आपने अपने जीवन में अपनी जिंदगी में इतना अच्छा रोल अदा किया है और ये सिर्फ उनके तक महदूद नहीं था, ये आने वाले तमाम इंसानों के लिए ये पैगाम है और ये सबक है। भिखू जी की तरफ से एक शेर सुना दूं। आप आए हैं तो महफिल में जमाल आया है, आप आए हैं तो महफिल में जमाल आया है, वरना न आने का उम्र भर ख्याल आता है। वक्त की धूम तो औरों से भी हो जाती है, मगर अपने न आए तो मलाल आता है। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। shoka pangyen mendole nihinda ta chamla nyam song kel ba ya dole jige tene ngom sar jesa pangyen mendole vai I pa yele yele song yele 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 song chung sa ka chung ha to ka chung ji chung sa ye pe lu se da tu pe to che de la tu po to ma to ka chung sa ka we tu chen de chung ji chung sa ye pe tu cha pa chung. And all of you from various religion peoples are present here, and we want the Mahakaruna. Buddha's philosophy was Mahakaruna. Pradnyasil Karuna, Atta Deepa Bhava, Bhahujan Hitai, Bhahujan Sukhai. This is the Buddha's philosophy, and America also knows that. When there was the attack on Pentagon and World Trade Center, at that time, America was thought, we don't want terrorism. Buddha said that we don't want terrorism, we don't want himsa, but now I appeal to the America that if you want the ahimsa, then you come to Buddha. You don't go to the Yuddha. All the human beings, they want Shanti. Without Shanti, there is no development. If there is no Shanti, then your life should be collapsed. And therefore I appeal to all the peoples. If you are maybe from Hindu community, you may be from Jain community, you may be from Islam community, but you are also accepting the Buddha's philosophy. Therefore, I am very happy because India is originally Buddha's country, and you know that 2,500 years back, India was Buddhist country, Pakistan was Buddhist country, Afghanistan was Buddhist country, and Burma was Buddhist country, and now Buddha's philosophy is going all over the world. नमस्कार नमो बुद्धाय भगवान बुद्धनो संदेश છે કે બહુજન હિતાય બહુજન સુખાય ધર્મની અંદર બહુજન હિતાય એમાં કોઈ નાત ન આવવી જોઈએ, કોઈ જાત ન આવવી જોઈએ, કોઈ ધર્મ સંપ્રદાય ન આવવી જોઈએ. બહુજન હિતાય જેમાં જાજા માણસોનું હિત હોય, જેમાં જાજા માણસોનું કલ્યાણ હોય, એનું નામ સત્ય. સત્યમેવ જયતે. અને સત્યને પામવા માટે જેટલું અસત્ય હોય છોડવું પડે, અને અસત્ય છોડ્યા વિના કોઈ દી સત્યની પ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી. અને સત્યથી મોટું કોઈ દુનિયામાં નથી. અને જે ધર્મ હોય કે સંપ્રદાય હોય, જો એની અંદર સત્ય ન હોય, જો એ સારા કર્મ ન હોય, જો એની અંદર દયા ન હોય, કરુણા ન હોય, પ્રેમ ન હોય, ભાઈચારો ન હોય, ઉચ્ચ નીચના ભેદ હોય, એને સત્ય કહીશું આપણે? ભગવાન બુદ્ધે એક માણસે ભગવાન બુદ્ધને કીધું કે બાપુ અમને ટૂંકામાં કહી દો, જાજુ યાદ ન રહે.
હાવ સસ્તામાં પતી જાય એવું કહી દો. ભગવાન બુદ્ધ કે તો સાંભળો, હવે એવું કહી દઉં હાવ સસ્તામાં પતી જાય. કે બોલો બધાએ ધ્યાન કર્યું ભગવાન બુદ્ધ ઉપર કે સત્ય ગ્રહણ કરો, અસત્યનો ત્યાગ કરો. જાઓ, બીજું કાંઈ નથી કરવું. સત્ય ગ્રહણ કરો, અસત્યનો ત્યાગ કરો. બસ મને સાંભળવાની જરૂર નથી. સત્ય ગ્રહણ કરો ને સત્યનો ત્યાગ કરો. બધા કે વિચારમાં પડ્યા કે આપણે ઊંચ નીચમાં માનીએ એ સત્ય છે, આપણે નાત જાતમાં માનીએ એ સત્ય છે, તો આપણે સાંટો પાણી કરીએ એ સત્ય છે, તો આપણે જુગાર રમીએ એ સત્ય છે, તો કોકનું ચોરી લઈએ શું એ સત્ય છે? મનમાં અહમ રાખીને ફરીએ હું કાંઈક છું ને મારામાં કાંઈક છે, આ સત્ય છે? પછી આપણે દાણા જોઈને ધૂણીએ ને દેવદૂતના બધા, આ સત્ય છે? સત્ય ગ્રહણ કરો, અસત્યનો ત્યાગ કરો. ભગવાન બુદ્ધ કહે છે ભૂતકાળ છોડી દો, ભવિષ્યકાળ છોડી દો અને મધ્ય વર્તમાન કાળ ગ્રહણ કરો. માનવીના જીવનમાં મોટામાં મોટી બે ઘટના હોય છે, જન્મ અને મૃત્યુ. આપણો જન્મ થયો એ ભૂતકાળ થઈ ગયો. ભવિષ્યમાં આપણે શરીર છોડવાનું છે. તો આ જન્મ અને મૃત્યુ એ બે વચ્ચેનો જે સમયગાળો આ છે વર્તમાન કાળ. આ છે આપણી જિંદગી. માણસ પોતાની જિંદગી એવી છે, ભીતરમાં દારૂનું સેવન કરે તો દારૂડિયો થાય, ભીતરમાં જુગારના વિચારોનું સેવન કરે તો જુગારી થાય, ભીતરમાં ચોરીના વિચારોનું સેવન કરે તો ચોર બની જાય, ભીતરમાં ગુંડાગીરીના વિચારોનું સેવન કરે તો ગુંડો બની જાય, ભીતરમાં જો રાજકારણના વિચારોનું સેવન કરે તો એ રાજકારણીઓ બની જાય. ભગવાન બુદ્ધ કહે છે તમે એવા વિચારોનું સેવન કરો. બહુજન હિતાય બહુજન સુખાય. 2,500 વર્ષ પહેલા મહાન વિભૂતિ આપણા ભારત દેશની અંદર એને જન્મ લીધો. આજે કેટલા રાષ્ટ્રો ઉપર બૌદ્ધ ધર્મનો ઝંડો ફરકે છે. એના વિચારોમાંથી કંઈક માણસોએ પ્રેરણા લીધી અને હવે બુદ્ધિજીવી જે માણસો છે મેં સાંભળ્યું છે એ કહું છું. કેટલાયને બુદ્ધિજીવીને મોઢેથી મેં સાંભળ્યું છે કે કાં બુદ્ધ અને કાં યુદ્ધ. धम्म का मतलब द लॉ ऑफ नेचर, धम्म का मतलब द लॉ ऑफ ह्यूमन माइंड, द लॉ ऑफ ह्यूमन बॉडी, हाउ द माइंड एंड बॉडी इज वर्किंग, हाउ द माइंड इज वर्किंग, what is the quality of mind and how can we transform our mind, how can we lead the mind in better way. That path Buddha taught. आज उस मार्ग की हमें सख्त जरूरत है. हमें अपने हृदय को बदलना है. हमारा हृदय अपने आप नहीं बदलने वाला है, प्रयास हमें करने हैं. ज्ञान अपने आप नहीं आने वाला है, ज्ञान को हमें पाना है. तो बुद्ध ने ज्ञान का मार्ग दिखाया कि ज्ञानी बनो, शिक्षित बनो और अपने हृदय को बदलो. करुणा, मैत्री, मुदिता आदि उच्चतम गुण अपने जीवन में धारण करो और सभी के साथ मैत्री पूर्ण, प्रेम पूर्ण, बंधु भाव से व्यवहार करो. समता के रास्ते चलो, विषमता को छोड़ दो, बंधु भाव के रास्ते चलो. आज हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वही बात कहती है.
याला शिक्षण आमकाचो याला शिक्षण उर्गुमी तुम्हाला सा नमके अलंगी जांगिलीस का गोनी नुर्गु मनची लो नमके अलंगी जांगिलीस का गोनी क्यानो मनची आज समाज में विकृतियां क्यों पनप रही है? उस संतुलन को हम बुलाते जा रहे हैं। एक करुणा का स्रोत क्यों सूख रहा है? क्योंकि हम उस बैलेंस को खोते जा रहे हैं, जबकि हमारे स्वस्थ समाज की संरचना के लिए बंधुओं और बहनों हमारी 3 प्रकार की चेतना है। स्वार्थ की चेतना, परार्थ की चेतना और परमार्थ की चेतना। अगर सरल भाषा में आपको कहूं, स्वार्थ का मतलब है मेरा सो मेरा और तेरा सो भी मेरा, ये है स्वार्थ। परार्थ है मेरा सो मेरा और तेरा सो तेरा, किंतु परमार्थ है तेरा सो तेरा, मेरा सो भी तेरा, ये परमार्थ है। आज बौद्ध भिक्षु संघ सेना जी की इतनी सराहना क्यों हो रही है? क्योंकि इन्होंने अपने स्वार्थ को विगलित किया और परार्थ और परमार्थ के लिए समूचा जीवन जो है, उस लद्दाख के अंदर जो जहां पहुंचना कठिन होता है, वहां पर अपना जीवन समर्पित कर रखा है। संघ सेना जी को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। करुणा की बात करना, करुणा पे प्रवचन करना बड़ा आसान होता है, लेकिन करुणा जब आँखों से और सत्कर्मों से बहती है, वो करुणा बड़ी पवित्र होती है। ये गांव-गांव में घूमे हैं, हमने तंबू में रहने वाले हमारे लद्दाखी भाई बहनों को देखा डॉक्यूमेंट्री में। बच्चों को आश्रम में लाए और ये बच्चे उन्होंने कितने तैयार किए हुए हैं। आपकी मूर्तिमंत करुणा को मैं प्रणाम करता हूँ। आप जीवंत करुणा है। उनकी मधुर मुस्कान, मुस्कान 2 तरह की होती है। एक शॉपिंग सेंटर की होती है, या तो चाइना के फूलों की होती है, और एक मुस्कान भीतर से आती है। संघ सेना जी की मुस्कान भीतर से आती है, और भीतर से जो करुणामय है उसकी ही मुस्कान आकर्षित करती है, और तो बिजनेस होता है। देखिए, हमारे तथागत के अनुयायी हो, तीर्थंकर के अनुयायी हो, मोहम्मद हो या जीसस हो, जो भीतर के सोर्स को पा गए हैं उनके लिए भेद साधन होता है, साध्य नहीं होता।
महाकरुणा साध्य है, साधन कोई भी हो, आखिर जो अपने सोर्स तक पहुंच जाता है उनके लिए कोई भेद नहीं रहता। महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर की एक अंध छात्रा ने जिंदगी के बारे में सकारात्मक ऊर्जा का संदेश देकर सभी लोगों का दिल जीत लिया। ना पूछो कि मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मंजिल कहाँ है, अभी तो बस सफ़र का इरादा किया है। ना हारेंगे हौसला उम्र भर, ना हारेंगे हौसला उम्र भर, किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। मुझे खुशी होती है जब आप लोगों के समक्ष कुछ कहने का अवसर मिलता है। मैं आप लोगों को देख तो नहीं सकती, लेकिन आप लोगों की वाणी को ज़रूर सुन सकती हूँ। आज मैं इस मंच पर खड़ी होकर आप लोगों के समक्ष अपना प्रशंसा करने के लिए नहीं, बल्कि यह बताने के लिए खड़ी हुई हूँ कि जीवन में बड़े बड़े सपने देखने या उसे साकार करने के लिए किसी इंद्रियों का ना होना, यह अपाहिज होना, ये किसी भी विकलांग व्यक्ति के जीवन में बाधा नहीं है। अगर हम खुद पे विश्वास या दृढ़ संकल्पता रखें तो वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा ताकत और हथियार है। वैसे तो हर मनुष्य के जीवन में परेशानियों और कठिनाइयों का अंबार लगा होता है। निश्चय ही जो व्यक्ति इन्हें सही ढंग से पार करने की क्षमता रखता है और अपनी हिम्मत नहीं खोता, असफलता उससे कोसों दूर भागती है। और ज़िंदगी में जितनी भी कठिनाइयाँ आती है वह उनके पैरों तले दब जाते हैं। आजमाती है ज़िंदगी उन्हीं को, आजमाती है ज़िंदगी उन्हीं को जो कठिन रास्तों पे चलना जानते हैं। ज़िंदगी में जीत उन्हीं की होती है, ज़िंदगी में जीत उन्हीं की होती है जो सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना जानते हैं। मैं अपने जीवन में जो संघर्ष कर रही हूँ उन पे विजय प्राप्त करने की पूरी कोशिश करूँगी और जीवन में संघर्ष करना कभी नहीं छोड़ूंगी। अगर हम जीवन में संघर्ष करना ना छोड़े तो अंत में हम उसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। मैंने अपने जीवन में यह सीखा है, आँखों की रोशनी ना होना ये किसी भी दृष्टिहीन व्यक्ति के जीवन में बाधा नहीं, बल्कि ये हमारे लिए एक चुनौती है। इस चुनौती का सामना करते हुए आज मैं इस मंच पर खड़ी होकर आप लोगों के समक्ष कुछ कहने की योग्य बनी हूँ। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलते नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहाँ होती है। मैं अपना नाता हर उस इंसान से मानती हूँ जिनके दिल में आगे बढ़ने की चाह है, जिनके हाथ छीनने के लिए नहीं बल्कि किसी के सहायता के लिए उठते हैं, जिनके दिलों में नफरत वैर विरोध नहीं बल्कि कुछ अच्छा कर दिखाने की चाह होती है। जैसे हमारे परम पूज्य गुरु संगा सेना जी हमें एक आदर्श व्यक्ति बनाने में हमारी सहायता कर रहे हैं और शिक्षा के माध्यम से हमें अंधेरे से उजाले की ओर राह दिखा रहे हैं। उसी प्रकार आज के इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी से यह निवेदन करती हूँ, अगर आप किसी विकलांग या कमजोर बच्चे पर दया या करुणा दिखाना चाहते हो तो उन्हें 2 वक्त की रोटी या 2 पैसे देकर ना छोड़े, बल्कि उन्हें शिक्षा प्राप्त करने की ओर राह दिखाइए। जैसे शिक्षा के माध्यम से किसी विकलांग व्यक्ति भी किसी काबिल बन सकता है और यही शिक्षा ना हो तो बलवान व्यक्ति भी अपाहिज बनकर रह जाते हैं। मैं अपने आप को उन खुशकिस्मत लोगों में से मानती हूँ जिन्हें सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि गुरुजी जैसे लोगों का मार्गदर्शन करने का अनोखा ज्ञान मिला है। जिंदगी ने जब इतनी खुशकिस्मती दी है तो मैं भी वादा करती हूँ मैं इन्हें उन कामों में प्रयोग करूँगी जिससे इंसान और इंसानियत के अच्छाइयाँ हो। गुरुजी, मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ और सदा रहूँगी, जिसके कारण आज मैं किसी योग्य बनी हूँ। So once again, thank you for giving me this golden opportunity. Thank you so much. मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि चुनजिन अंगमो जो हमारे स्कूल के स्टूडेंट हैं महाबोधि लद्दाख महाबोधि स्कूल में,
इन्होंने वहाँ से स्टडी कंप्लीट करके अभी ये चंडीगढ़ 22 सेक्टर में हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई कर रही हैं। इनके क्लास में अराउंड 70 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें सिर्फ यही एक नेत्रहीन बच्ची है। लेकिन मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि उन 70 बच्चों में से टॉप पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन हर साल यही लेती आ रही है। और इस साल के CBSE बोर्ड एग्ज़ाम में चुनजिन अंगमो ने अपने क्लास में 84% से अपने एग्ज़ाम क्लियर किया और अपने क्लास में ये सबसे टॉप पोजीशन पे रही हैं और मैं उनको बधाई देना चाहती हूँ। और ये अब और भी आगे लाइफ में अपने जीवन में आगे बढ़े, बहुत सारे सफलता इनको मिले, यही हम प्रार्थना करते हैं। अंतिम सांस्कृतिक प्रस्तुति के साथ इस कार्यक्रम का समापन हुआ। हर व्यक्ति के मन में करुणा जागे, उसका मंगल हो, कल्याण हो, सभी प्राणी मात्र सुखी हो, यह संसार दुखों से मुक्त, यही संदेश इस करुणा दिवस के अवसर पर सभी मनुष्य एवं प्राणी मात्रों के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाज इंडिया टीवी। खुद का ये